ضلع ہلی پور تحصیل خانپور میں خانپور ڈیم یونین کے راجہ حنیف کیانی نے کنزیومر کورٹ ہری پور میں ٹی ایم اے خانپور کی طرف سے خانپور ڈیم پر ہر قسم کے ٹیکس لینے پر کنزیومر کورٹ میں کیس دائر کیا، جس پر کنزیومر کورٹ کی طرف سے ٹیکس وصولی سے روک دیا گیا۔ یاد رہے کہ ٹی ایم اے خانپور واپڈا سے بغیر کسی معاہدے یا اجازت نامے کے عوام سے پارکنگ، پیراسیلنگ، بوٹنگ سمیت مختلف مد میں ماہانہ لاکھوں روپے ٹیکس وصول کر رہا تھا۔ سیالکوٹ میں یوم عاشور 10 محرم الحرام کا مرکزی جلوس امام بارگاہ در بطول اڈہ پسوریاں سے برآمد ہو چکا ہے۔ عزادار شہید کربلا کی بڑی تعداد میں شرکت کیے ہوئے ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے ملک علی عمران سے۔ جی علی عمران، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ ملک بھر کی طرح سیالکوٹ میں بھی حضرت امام حسین علیہ السلام کا مرکزی جلوس شبیہ علم ذوالجناح کا جلوس قدیمی امام بارگاہ در بطول اڈہ پسروٹیاں سے برآمد ہو چکا ہے۔ زائرین کی بڑی تعداد موجود ہے۔ ہزاران حسین سینہ کو بھی زنجیر زنی کرتے ہوئے اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ جلوس کو ہارداریں تاریں لگا کر چاروں طرف سے سیل کر دیا گیا ہے اور امام بارگاہ کے منتظمین بھی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ ڈیوٹی کے ڈی پی او سیالکوٹ کی محمد حسن اقبال کی خصوصی ہدایت پر 3000 سے زائد پولیس اہلکار جو ہے ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں، جن میں لیڈ فورس ہے، ٹریفک وارڈن ہے، 11 بائی قومی رضاکار، 11 بائی ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں، جو کہ جلوس کے راستوں پر 100 سے زائد سی سی ٹی وی کیمرے بھی نصب کیے گئے ہیں، جن کی مانیٹرنگ ڈی پی او آفس سیالکوٹ میں کی جا رہی ہے۔ علی کا زیب و ذہن زندہ ہے، فاطمہ کا چین زندہ ہے، مت پوچھ ان بے زباں کتابوں سے، جب سنو اذان تو سمجھو حسین زندہ ہے۔ جی ملک بھر کی طرح پہلوانوں کے شہر گوجرانوالہ میں بھی نواسۂ رسول اور شہدائے کربلا کی یاد میں یوم عاشور کا مرکزی جلوس اپنے روایتی راستوں پر گامزن ہے۔ اس وقت ہمارے نمائندے حاجی ظفر اللہ چودھری ہمارے ساتھ گوجرانوالہ سے موجود ہیں۔ جی حاجی ظفر اللہ چودھری، کیا آپ کے پاس تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، دیگر شہروں کی طرح پہلوانوں کے شہر گوجرانوالہ میں بھی جو ہے یوم عاشور بڑی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جائے۔ تمام اہل اسلام نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر غم سے نڈال ہیں۔ اور اگر مجالس اور جلوسوں کے حوالے سے بات کی جائے تو بالکل یہاں پر گوجرانوالہ میں تقریباً 89 کے قریب چھوٹے بڑے جو جلوس ہیں وہ برآمد ہو چکے ہیں اور اپنی منزل کی طرف رواں دعائیں۔ اگر بات کی جائے مجالس کے حوالے سے تقریباً 77 مجالس کا بھی انعقاد جاری اور ساری ہے۔ اس وقت میں مرکزی امام بارگاہ جو گلستان معرفت سے برآمد ہونے والا مرکزی جلوس ہے اس میں موجود ہوں، اور بالکل اگر بات کی جائے یہاں پر عزاداروں کے حوالے سے، عزادار یہاں پر عزاداری کر رہے ہیں، سینہ کو بھی کر رہے ہیں اور زنجیر زنی بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور نوہ خانے بھی کر رہے ہیں، اور بالکل ہزاروں کی تعداد میں اس جلوس میں چھوٹے بڑے خواتین جو ہیں اس وقت عزادار موجود ہیں۔ اور اگر بات کی جائے یہاں پر سبیلوں اور لنگر کے حوالے سے تو تمام مقررہ کردہ راستوں پر دودھ کی، پانی کی سبیلوں کے علاوہ لنگر کا بھی وسیع انتظامات کیے گئے ہیں۔ اگر بات کی جائے یہاں سیکیورٹی کے حوالے سے تو سی پی او گوجرانوالہ کی طرف سے سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں۔ تمام داخلی و خارجی راستوں عملی رکاوٹوں سے بند کیا گیا ہے، اور تمام جو یہاں پر چھتیں ہیں ان پر سنیپر بھی تعینات کیے گئے ہیں، اور سی سی ٹی وی کیمرے لگائے گئے ہیں، ویڈیو کیمرے سے کوریج کی جا رہی ہے، اور خاردار تاریں بھی لگائی گئی ہیں، اور تمام ایلیٹ فور اور پنجاب پولیس کے جو جوان ہیں وہ اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں۔ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نپٹنے کے لیے یہاں پر فوج بھی طلب کی گئی ہے، اور اس کے علاوہ اگر بات کیا دیگر محکموں کی، محکمہ صحت، ریسکیو، رینویو اور اس کے علاوہ سول ڈیفنس کا عملہ بھی اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دیتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جی بہت شکریہ محنت سجاد اسلم ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ یہاں آپ کو بتائیں گے محرم الحرام کا مہینہ بڑے عقیدت اور احترام سے منایا جا رہا ہے۔ تحصیل چوک سرور شہید کے شہری اپنے پیاروں کی قبروں کی مرمت، لپائی، فاتح خوانی کرتے نظر آ رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے چودھری ذیشان مشتاق سے۔ جی ہاں، بالکل محرم الحرام کا مہینہ بڑے عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں تحصیل چوک سرور شہید کے قدیمی قبرستان میں، جو شہری سرور شہید کے شہری ہیں اپنے پیاروں کی قبروں کی لپائی، مرمت وغیرہ فاتح خوانی کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت شہری موجود ہیں، ان سے پوچھتے جی سر جی بتائیے، گرمی کی شدت بھی بہت ہے۔ ہم ہر سال کی طرح جیسے پہلے آتے تھے، اس سال بھی ہم اپنے پیاروں کی قبروں پر آئے ہیں اور ان کی لمبائی مرمت کی ہے، اور انشاءاللہ ہر سال ہے، کیونکہ ان کی جو یادیں ہوتی ہیں نا وہ ہمارے لیے بہت کچھ چھوڑ کے گئے ہیں، اس لیے ان کی اب ہمارے والدین جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کے لیے ہم بیس نعمت ہیں کہ ہم ان کی قبر پہ آتے ہیں اور دعا خوانی کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہر سال اسی طرح آتے رہیں گے۔
जी हाँ, बिल्कुल आपने शहरियों की बात सुनी कि ये कहना था कि अपने प्यारों अब्बू जान और अम्मी जान या दीगर जो अफराद इस दुनिया से चले गए हैं उनकी कब्रों पे आते हैं और मरम्मत फातिहा खानी करते हैं। जी। मुल्क के दीगर शहरों की तरह बिहाड़ी में भी यौम आशूरा इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इस वक्त यौम आशूरा का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह सिफारत ज़ीनिया से बरामद हो चुका है और नुमाइंदा वॉइस न्यूज़ राना हारून जुलूस के साथ मौजूद है। मजीद इनसे जानते हैं कि बिहाड़ी पुलिस की जानिब से मजालिस और जुलूसों की सिक्योरिटी के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं। जी राना हारून, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह बिहाड़ी में भी यौम आशूरा का जो दिन है वह भरपूर जोश जज्बे मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। और जो जुलूस है वो मुकर्रर रास्तों से होता हुआ नमाज ज़ुहरैन जो है वह बल्दिया में अदा करेगा। उसके बाद 6 बजे जो है सफारती ज़ैनब मजालस वहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं और यहाँ पर जो है वो ठंडे और मीठे पानी की जो शबीर है वो भी लगा दी गई हैं। जी हसन, मजीद आगे बढ़ें और आपको बताएं मुजफ्फरगढ़ में भी अशरा मुहर्रमुल हराम निहायत अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। जुलूसों और मजालिस की सिक्योरिटी के लिए फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। मजीद तफसीलात हमें बता रहे हैं मुजफ्फरगढ़ से मेहनत सजाद असलम। अजी पूरा आलम इस्लाम की तरह मुजफ्फरगढ़ में भी जो अशरा मुहर्रमुल हराम है निहायत अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुजफ्फरगढ़ के नवाही शहर खानगढ़ में, जहाँ पर 10 मुहर्रमुल हराम का जो जुलूस है वो सुबह 9 बजे आस्थाना शेखन शाह से बरामद हुआ। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि आज जो ज़िला भर में टोटल जुलूसों की तादाद है वो टोटल 165 जुलूस ज़िला भर में निकाले जाएंगे, जिनमें ए कैटेगरी के जो है वो 32 जुलूस हैं। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ जो बी कैटेगरी के जुलूस हैं वो 37 हैं और सी कैटेगरी के जुलूस हैं वो 96 हैं। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि जो ज़िला भर में टोटल मजालिस की तादाद है वो 280 है। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि ए कैटेगरी के जो मजालिस हैं उनकी तादाद 51 है, जबकि बी कैटेगरी के जो मजालिस हैं उनकी तादाद 85 है। इसके अलावा सी कैटेगरी की जो मजालिस हैं उनकी तादाद 143 है। सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए तो पंजाब पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। 3000 से ज़ायद जो पुलिस एहलकार हैं वो मजालिस और जुलूसों की सिक्योरिटी पर तैनात होंगे। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि जुलूस के फ्रंट और बैक पर वॉक थ्रू गेट्स के ज़रिए जो है वो अज़ादारों को जुलूस और मजालिस में जाने की इजाज़त दी जाएगी। इसके अलावा मेटल डिटेक्टर के ज़रिए भी तलाशी की जाएगी। इसके अलावा जो CCTV कैमरे हैं उनके ज़रिए भी जो मॉनिटरिंग की जाएगी। अगर इंतज़ामिया की बात की जाए तो ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से भी खातिर खा इंतजाम किए गए हैं। टाउन कमेटी का अमला है जो जुलूस के साथ साथ है। इसके अलावा रेस्क्यू एहलकार भी जो अज़ादारों को जो है वो तिब्बी इमदाद देने के लिए रेस्क्यू एहलकार भी मौजूद हैं। इसके अलावा वापडा एहलकार और महकमा सियाहत का अमला जो है वो भी जुलूस के साथ साथ है। DPO सैयद हसनैन हैदर का कहना था कि मुहर्रमुल हराम के मौका पर पुरफ़िज़ा जो है वो माहौल मुहैया करना पंजाब पुलिस की अवलीन जिम्मेदारी है। जी सादिकाबाद में 10 मुहर्रमुल हराम का मातमी जुलूस इमाम बारगाह कसरे रबाब से बरामद हो चुका है। जुलूस के दाखिली और खारजी रास्तों को बंद कर दिया गया है। सिक्योरिटी के फुल इंतजाम किए गए हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं जुलूस में मौजूद अपने नुमाइंदे मलिक असद से। जी असद, हमें बताइएगा प्लीज़। हाँ जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहरों की तरह सादिकाबाद में भी जो है 10 मुहर्रमुल हराम का जुलूस मातमी जुलूस जो है वो इमाम बारगाह कसरे रुबाब से जो है बरामद हो चुका है। जुलूस के रास्तों को जो है कनातें और खारदार तारें लगाकर बंद कर दिया गया है। अगर सिक्योरिटी के हवाले से मैं बताता चलूँ कि सिक्योरिटी के जो है फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। आने जाने वालों के जो है सख्त चेकिंग की जा रही है। जुलूस के दाखिली और खारजी रास्तों को जो है मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है और साथ ही साथ जो है रेस्क्यू 1112 पंजाब पुलिस के एहलकार, एलियट फोर्स और वापडा एहलकार भी जो है अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम देते दिखाई दे रहे हैं। जुलूस जो है अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ जो है नमाज ज़ोहर के वक्त जो है मरकज़ी माँ बारगाह कसरे पंचतन पाक में जाकर जो है इख्तिताम पजीर होगा। जी बहुत शुक्रिया मलिक असद। आगे बढ़ें और आपको बताएं मुल्क भर की तरह नवाबशाह में भी मुहर्रमुल हराम में लोगों ने अपने प्यारों की कब्रों की सफाई सुथराई के लिए कब्रिस्तान का रुख कर दिया है। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे राहिल राठौर से। जी राहिल। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ गौसिया कब्रिस्तान में, जहाँ लोगों की कसीर तादाद जो है वो सुबह से ही आना शुरू हो गई थी। मुहर्रम में हर साल लोग जो है अपने प्यारों की कब्रों पर आते हैं,
قبروں کی صفائی ستھرائی اور لپائی کا جو عمل ہوتا ہے اس کو پورا کیا جاتا ہے، اور یہ ہر سال جو ہے وہ لوگوں کی روٹین ہے۔ ہم یہاں لوگوں سے جانیں گے جو قبرستان میں آ کے اپنے پیاروں کی قبر کی لپائی کرتے ہیں کہ ان کے کیا تاثرات ہیں، وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ جی ہمارے ساتھ اس وقت قبرستان میں جو ہے انسپیکٹر عدنان صاحب موجود ہیں، ہم ان سے پوچھیں گے اپنی ڈیوٹی کے بیچ میں سے قبرستان آئے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہاں پر میری والدہ کی قبر ہے، تو محرم 9 محرم تھی، اس وجہ سے میں تقریباً ڈیلی آتا ہوں والدہ کی قبر پہ، تو محرم بھی ہے، اس کی وجہ سے مجھے آنا پڑا اس ٹائم۔ ڈیوٹی چھوڑ کے آئے ہیں یا چھٹی لے کے آئے ہیں؟ ڈیوٹی سے ہی آ رہا ہوں، چلیں جی۔ اور ابھی بیک جاؤں گا واپس ڈیوٹی پہ۔ ہم دادا کی قبر کو کرانے، کیونکہ ہر سال کی طرح قبریں بیٹھ جاتی ہیں، پھر ان کی حفاظت کے لیے مٹی وٹی ڈلوا کے لپائی کرا کے پھر جا رہے ہیں ابھی انشاءاللہ۔ جی اللہ تعالیٰ خیر خیریت۔ میرے والد صاحب کی یہاں پہ قبر ہے اور میرے چاچو کی بھی قبر ہے، تو ہم اس کی صفائی ستھرائی اور لپائی کے لیے ہر سال آتے ہیں اور ہر فرائیڈے بھی آتے ہیں، تو اسی مسئلے میں ہم لوگ آتے ہیں ہمیشہ اور قبرستان کی صفائی وغیرہ کے لیے آتے ہیں۔ ادھر میں زیادہ زورتا ہوں میں، اور محرم پہ تو لوگ زیادہ آتے ہیں اور رجحان زیادہ ہوتا ہے، عام دنوں پر لوگ بہت کم آتے ہیں۔ ہر سال محرم میں ہی زیادہ لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہے؟ ہر سال محرم میں۔ جی السلام علیکم۔ چاچا یہ بتائیے گا کہ محرم میں ہی قبرستان میں یہ لوگ جو لپائی کے لیے آتے ہیں اور ساری قبریں مرمت ہوتی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ اس کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے، شہید حسین سرکار جو ہیں ہمارے شہید ہیں، اور ہم شہیدوں کی یاد میں ہم اپنے عزیز قاربوں کی قبروں پہ آتے ہیں اور ان کی مرمت کرتے ہیں۔ ان کے صدقے میں یہ آج کے یہ محرم کے دن جو ہیں وہ قبرستان کے اندر آنا اور ان کے لیے دعا خیر کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ جی اور ویسے تو ہم آتے رہتے ہیں یہاں، لیکن خاص کر کے محرم میں یہ وہ یاد ہے جو کربلا کی ہے۔ ٹوبا ٹیکسنگ میں یوم عاشور کا جلوس مرکزی امام بارگاہ سے برآمد ہو گیا ہے، جو مقررہ راستوں کی طرف گامزن ہے۔ سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات کیے گئے ہیں۔ اسی پر مزید جان لیتے ہیں اپنے نمائندے وائس نیوز حافظ شاہد سے۔ جی حافظ۔ جی بالکل، ملک کے دوسرے شہروں کی طرح ٹوبا ٹیکسن میں بھی یوم عاشورہ کا مرکزی جلوس جو ہے مرکزی امام بارگاہ سے برآمد ہو چکا ہے۔ مختلف راستوں سے ہوتا ہوا جو ہے میونسپل کمیٹی چوک پر پہنچے گا اور وہاں پر جو ہے نماز ظہرین ادا کی جائے گی، اور اس کے بعد جو ہے جلوس جو ہے صدر بازار کی طرف گامزن ہوگا اور وہاں پر جو ہے مجلس عزا کا اہتمام ہوگا، اور جس کے بعد جو ہے یہی جلوس مختلف راستوں سے ہوتا ہوا دوبارہ مرکزی امام بارگاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا۔ دوسری جانب اگر انتظامات کے حوالے سے بات کریں تو ضلع انتظامیہ کی جانب سے بھرپور انتظامات کیے گئے ہیں۔ 1600 سے زائد جو ہے پولیس اہلکار ضلع بھر میں ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام جلوس کے راستوں پر CCTV کیمروں کی مدد سے جو ہے سیکورٹی کو دیکھا جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ تمام راستوں کو خاردار تاروں کے ذریعے بھی بند کیا گیا ہے۔ اگر ضلع بھر کی بات کریں تو آج چھوٹے بڑے جو ہے 70 سے زائد جو ہے جلوس نکالے جا رہے ہیں یوم عاشورہ کے، اور اس میں سب سے عام جو مرکزی جلوس جو ہے وہ ٹوبا ٹیکسن میں مرکزی امام بارگاہ سے برآمد ہو کر اپنی منزل کی طرف گامزن نظر آ رہا ہے۔ جی بڑھیں اور آپ کو بتائیں، ملک کے دیگر شہروں کی طرح عارف والا میں بھی یوم عاشور مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ عاشورہ کا مرکزی جلوس امام بارگاہ دربار اہل بیت ڈی بلاک سے برآمد ہو کر اپنے مقررہ راستوں پر گامزن ہے۔ اسی حوالے سے ہمیں مزید تفصیلات جانتے ہیں عارف والا سے اپنے نمائندے عمیر حسن سے۔ جی عمیر، ہمیں آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، تحصیل بھر میں جلوسوں اور مجالس کا سلسلہ جاری ہے۔ آج یوم عاشور بھی مذہبی و عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جائے گا۔ یوم عاشور 11 مجالس اور 9 جلوس برآمد ہوں گے، جس کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ عاشورہ کا مرکزی جلوس مرکزی امام بارگاہ ڈی بلاک سے برآمد ہوگا۔ جلوس طے شدہ راستوں سے گزرتا ہوا جناح چوک پہنچے گا، جہاں پر مجلس اذان اور نماز ظہرین کی ادائیگی کی جائے گی۔ اس سلسلہ میں پولیس اور انتظامیہ نے سخت انتظامات کر رکھے ہیں۔ جلوسوں کی نگرانی CCTV کیمروں سے کی جائے گی۔ جلوسوں کے راستوں پر کناتے اور خاردار تاریں لگا کر وہاں پر مسلح اہلکار تعینات کیے گئے ہیں۔ اسی سلسلہ میں گزشتہ روز کمشنر ساہیوال نے بھی عارف والا کا دورہ کر کے انتظامات کو چیک کیا۔ امن و امان کی فضا کو برقرار رکھنے کے لیے پولیس نے فلینک مارچ بھی کیا۔ یوم عاشور پر محکمہ ہیلتھ ریسکیو 1122 بابڈا پولیس سمیت دیگر ادارے بھی ہائی الرٹ ہیں۔ جی
हाफिजाबाद डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद मैडम सुंदर इरशाद ने कहा है कि 9 और 10 मुहर्रमुल हराम को जिला भर में 63 जुलूस निकाले जाएंगे, जिनमें 7 जुलूस हसास ए कैटेगरी में शामिल हैं। जुलूसों और मजालिस की सिक्योरिटी के इंतहाई फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। जुलूसों की गुजरगाहों पर 120 से ज़ायद CCTV कैमरे लगाए गए हैं। DC ऑफिस, DPO ऑफिस और सिटी पुलिस स्टेशन में 3 कंट्रोल रूम हैं, जबकि 10 मुहर्रमुल हराम को जिला भर में मोटरसाइकिल डबल सवारी पर भी पाबंदी होगी। जबकि अमन और अमान के क़याम के सिलसिले को बरकरार रखने के लिए जिला भर में एक दफ़ा 144 नाफिज की गई है। हाफिजाबाद 10 मुहर्रमुल हराम आशूरा के मौका पर तहसील हाफिजाबाद में 14 जबकि तहसील पिंडी बटिया में 12 जुलूस निकाले जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि जुलूसों और मजालिस की सिक्योरिटी, सफाई सुथराई और दीगर इंतजामात को हर लिहाज से मुकम्मल कर लिया गया है। जिलाई इंतजामिया, म्यूनसिपल कमेटियों, पुलिस, सिविल डिफेंस, रेस्क्यू 1122, महकमा सेहत और दीगर तमाम मुतल्लिका महकमों की जानिब से अफसरान और एहलकार की खसूसी ड्यूटियाँ लगाई गई हैं। रेस्क्यू 1122 महकमा सेहत की जानिब से जुलूसों के अहम मुकामात पर मेडिकल कैंप भी लगाए जाएंगे, जबकि महकमा सिविल डिफेंस का बम डिस्पोजल स्क्वाड और दीगर एहलकार भी जुलूसों और मजालिस की सिक्योरिटी पर मामूर होंगे। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि जिला भर में आए दफ़ा 144 के तहत असलहे की नुमाइश, अमन व अमान के क़याम में खलल डालने, मजहबी मुनाफरत फैलाने, जुलूसों की गुजरगाहों पर वाक़ इमारतों की छतों पर खड़े होने पर पाबंदी होगी। तांजियावाला से खबर दें, जहां थाना मामू कांजन पुलिस ने 12 साला तालबा से शैतानी खेल खेलने वाले दरिंदा सिफत इमाम मस्जिद को 2 घंटे की कोशिश के बाद गिरफ्तार कर लिया। CPO फैसलाबाद कामरान आदिल ने SP सदर शमसुल हक दुरानी को मुलजिम को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया था, जिस पर मुकामी पुलिस ने इसे गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक थाना मामू कांजन के गाँव 496 गाब बे के मुकामी मस्जिद के शैतान सिफत इमाम मस्जिद मदरस बिलाल वल्द अहमद ने इस वक्त एक तालबा को अपनी हवस का निशाना बना डाला। जब वो दूसरी बच्चियों और बच्चों के हमरा कुरान पाक की तिलावत हासिल करने के लिए मस्जिद में गई हुई थी। मुतासरा बच्ची के सौतेले वालिद अमीन ने दर्ज कराने पर मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इसकी 12 साला बेटी जो 7वीं क्लास की तालिबा है, उसे दीगर बच्चियों के हमरा मस्जिद के बरामदे में सबक पढ़ रही थी कि शैतान सिफत मदरस बिलाल मेरी बेटी को बरगला कर मस्जिद से मुलाहिका कमरे में ले गया, जहाँ इसकी आंखों पर पट्टी बांधकर इसने ज़बरदस्ती ज्यादती करना शुरू कर दी। बच्ची चीखों पुकार सुनकर मस्जिद में मौजूद दीगर तालिबा और तालिबात कमरे में दाखिल हो गए और बच्ची को वहशी दरिंदे के जुंगल से आज़ाद करार दिया गया। वाक़े की इत्तला पर SHO थाना असद खोकर ने ASI साबिर अली की हमरा जाए वक़ा पर पहुँच गए, जिन्होंने मुतासरा बच्ची समेत वहाँ पढ़ने वाली दीगर तालिबात के बयानात कलम बंद करे। बच्ची को मेडिकल के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया और SP कामरान आदिल ने इस पर असदुल्ला खोकर को शाबाश दी। संदलियां वाली 10 मुहर्रमुल हराम का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह कायम आल मोहम्मद पिंडी गाजियाबाद से बरामद हुआ। मुल्क भर की तरह 10 मुहर्रमुल हराम बड़े अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। शहादत हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बयान की गई शबीर जुलजना बरामद हुआ। अज़ादारों की जंजीर जनी सीना को भी करते नजर आ रहे हैं। मरकजी जुलूस इमाम बारगाह कायम आल मोहम्मद पिंडी गाजियाबाद से बरामद हुआ। दरबार नूर शाह पहुँचकर एहतमाम होगा। दुनिया भर की तरह शेखुपुरा में भी 10 मुहर्रमुल हराम का मरकजी जुलूस गुलिस्तान ज़हरा से बरामद हो चुका है। इस वक्त शेखुपुरा से तारिक अली मुगल हमारे साथ मौजूद हैं। जी तारिक, बताइएगा जुलूस कितने बजे बरामद हुआ और कितने बजे इख्तिताम पजीर होगा और सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, दुनिया भर की तरह आज शेखुपुरा में भी 10 मुहर्रमुल हराम का मरकजी जुलूस जो है वो गुलिस्तान ज़हरा से बरामद हो चुका है और अपने रवायती रास्तों से होता हुआ अपनी मंजिल की तरफ गामजन है। दोपहर 1 बजे के करीब ये मरकजी जुलूस जो है ये अपने रवायती रास्तों से होता हुआ रिगल चौक पर क़याम करेगा और वहाँ पर नमाज ज़ाहरीन जो है वो अदा की जाएगी। नमाज ज़ाहरीन के बाद ये जुलूस जो है ये अपने मुकर्रर रास्तों पर होता हुआ शाम 6 बजे हम्माम बारगाह कलां पहुँचेगा। वहाँ से रात 10 बजे के करीब ये जंडियाला रोड कब्रिस्तान पर जाकर अख्ताम पजीर होगा। और यहाँ पर अगर मैं आपको ज़िली इंतज़ामिया के हवाले से बताता चलूँ तो ज़िली इंतज़ामिया की जानब से 2 दिन पहले से ही सफाई सुथराई के मुकम्मल इंतज़ामात
हो चुके हैं। और अगर यहाँ पर मैं आपको सिक्योरिटी के हवाले से बताता चलूँ तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बिलाल जफ़र शेख की जानिब से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ जो है वो इंतजाम किए गए हैं। जुलूस में आने जाने वाले तमाम ज़ायरीन को चेक करके ही जुलूस में आने की इजाज़त दी जा रही है। जुलूस की निगरानी जो है वो CCTV कैमरों के साथ की जा रही है। जुलूस में जितने भी दाखिली और खारजी रास्ते हैं सबको खारदार तारें लगाकर सील कर दिया गया है ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़या से निपटा जा सके। जी। मुल्क भर की तरह कहरोड़ पिका में भी शहदाए करबला की प्यास की याद में फालसे के शरबत, दूध और आम के फ्रेश जूस की सबीलें लगाकर प्यासे मुसाफिरों की खातिर तवाज़े की जा रही है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे हसनैन खान रिंद एक सबील पर मौजूद हैं। मजीद इनसे जानते हैं। जी हसनैन, बताइएगा प्लीज। जी बिल्कुल, 10 मुहर्रम अल हराम यौम अशूरा निहायत मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। अगर बात की जाए सबीलों की तो मुल्क भर के दीगर शहरों की तरह जो है कहरोड़ पक्का में भी जगह जगह जो है सबीलें लगा दी गई हैं, जिसमें आने वाले प्यासे मुसलमानों को जो है ठंडे मशरूबात के साथ उनकी तवाज़ो की जा रही है। इस वक्त मैं एक सबील पर मौजूद हूँ, मेरे साथ यहाँ पर बात करने के लिए शायरी मौजूद है। जी भाई जान, बताइएगा, आपने इतनी गर्मी में सबील लगाई हुई है तो क्या कहना चाहेंगे? जी, इमाम हुसैन की याद में हमने ये सबील लगाई और इंशाल्लाह ये सबील लगाने का जो सिलसिला है हमारा नस्ल दर नस्ल जारी रहेगा, क्योंकि इमाम हुसैन और हमारे प्यारे मुसलमानों को यजीद ने जो प्यासा शहीद कर दिया था, और हम कहते हैं हमारे आने वाले मुसलमान प्यास की वजह से उनको कोई तकलीफ ना पहुँचे। और इंशाल्लाह हमने जो आज सबील लगाई है उसमें हमने जो फालसे का जूस है और आम का जूस बनाया, और इंशाल्लाह ये सिलसिला हम क़यामत तक जारी रखेंगे। हुसैन जिंदाबाद और करबला पाइंदाबाद। जी, जैसे कि आपने शायरी की बात सुनी, उनका यही कहना है कि शोहदाए करबला के प्यास की याद में जो है हर आने वाले प्यासे मुसलमान की जो है खातिर तवाज़ो कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ये सिलसिला जो है ता क़यामत तक जारी रहेगा। जी। शहदाए करबला से मोहब्बत और अकीदत में 10 मुहर्रम अल हराम को घरों में लंगर और नयाज और सबीलों का एहतमाम किया जाता है, और करबला में आले रसूल पर पानी बंद करने वाले वाक़े की याद को ताज़ा किया जाता है। समंदरी के इलाका मुरीदवाला में भी समंदरी की सबसे बड़ी दूध की सबील लगाई गई, जिसमें 100 मन दूध तकसीम किया गया। मुहर्रम अल हराम शुरू होते ही हर घर में नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरों का ताज हैदर कर्रार इमाम आला मुकाम इमाम हुसैन और उनके 70 रफ़्क़ा की याद में और उनकी मोहब्बत और अकीदत के इजहार के लिए लंगर और न्याज का एहतमाम किया जाता है। करबला में यजीदी फौज की जानिब से पानी बंद करने और शोहदाए करबला की प्यास की याद में जगह जगह दूध और पानी की सबीलें लगाई जाती हैं। खानपुर में 10 मुहर्रम अल हराम का मरकजी जुलूस आस्थाना लोहारा से बरामद होकर मरकजी जानिब रवां दवा है। खानपुर में 10 मुहर्रम अल हराम के दिन ताज़िया ज़ुलजना और इल्म का मरकजी जुलूस आस्थाना लोहारा से बरामद हुआ। थाना सिटी के सामने इमाम बारगाह दरबार हुसैन का जुलूस इसमें शामिल। सीनियर जुलूस में मातमी हजरात जंजीर जनी सीना को भी कर रहे हैं, जबकि आस्थाना यारशाह, आस्थाना ठठारा, आस्थाना अल्लाह से ताज़िया इल्म पंगोड़ा सेज बेड़ा के जुलूस इकट्ठे होकर मरकजी रास्तों से होते हुए रात को गोल्डन फाटक पर इख्तिताम पजीर होंगे। नमाज ज़ोहरैन थाना सिटी के सामने, जबकि नमाज मगरिबैन और शाम गरीबा की मस्जिद सिटी फाटक के करीब होगी। इसी मौका पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शान है कि हुसैन जिंदा है हर करबला के बाद। मुल्क के दीगर शहरों की तरह रेनाला खुर्द में भी 10 मुहर्रम अल हराम का जुलूस मरकजी इमाम बारगाह बैतुल हुसैन से बरामद होकर कलमा चौक, पाक बाजार, GT रोड से होता हुआ करबला तारे शाह पर शाम गरीबा के साथ इख्तिताम पजीर होगा। इस पर मजीद तफसीलात बता रहे हैं वहाँ पर मौजूद तहसील रिपोर्टर वॉइस न्यूज़ रेनाला खुर्द साजिद हुसैन चौधरी। जी बताइएगा साजिद हुसैन। जी बिल्कुल, हज़रत इमाम हुसैन की ये शान अक़दस है, हुसैन ज़िंदा है हर करबला के बाद। मुल्क के दीगर शहरों की तरह रेनाला खुर्द में भी 10 मुहर्रम अल हराम का मरकज़ी जुलूस इमाम बारगाह बैतुल हुसैन से बरामद होगा और अपने रूट्स फाटक बाज़ार,
कलमा चौक, GT रोड से होता हुआ ये तारे शाह करबला पर इख्तिताम पजीर होगा, जहाँ पर शाम गरीबा होगी। जबकि रूस के रास्तों पर नोहा खानी, जंजीर जनी और मजालिस का भी एहतमाम किया गया है। जबकि ज़ायरीन और अज़ादारों के लिए रूस के रास्तों पर जो है वो दूध की सबीलों समेत मुख्तलिफ मशरूबात की सबीलें लगाई गई हैं और लंगर का भी वसी इंतज़ाम है। बात की जाए सिक्योरिटी की तो 52 कैमरों के साथ जुलूस की जो शुरका है उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है और DPO उकाड़ा तारिक अजीज सिंधु के अहकामात पर पुलिस स्नाइपर्स के साथ साथ सिक्योरिटी की एक बड़ी तादाद जो है वो जुलूस के साथ साथ मौजूद होगी। जबकि दीगर इदारे जो हैं, स्पेशल ब्रांच है, लेस्को है, 1122 है और जो महकमा सेहत का अमला है वो जुलूस के शुरका के साथ साथ होगा। जी, जिला भर में यौम आशूरा के मौके पर मजालिस और जुलूस जारी, मुसल्लह पुलिस एहलकार तैनात। तफसीलात के मुताबिक कसूर पुलिस की सख्त सिक्योरिटी में 10 मुहर्रम उल हराम की तमाम मजालिस और जुलूस के प्रोग्राम्स जारी हैं। जिला भर में 17 जुलूस और 55 मजालिस के प्रोग्राम्स जारी हैं, जिनमें सबसे बड़ा जुलूस सादात मंजिल कसूर सिटी से बरामद हो गया और जामिया अल हुसैनिया कोट रुकन दीन खान पर इख्तिताम पजीर होगा। मुजफ्फरगढ़ के नवाही इलाका मौजा बस्ती आरिफ वाला में बासित सुल्तान बुखारी ग्रुप को बहुत बड़ा झटका। तफसील के मुताबिक शहर सुल्तान के नवाही इलाका बस्ती आरिफ वाला से गोपांग बरादरी ने बासित सुल्तान बुखारी ग्रुप को छोड़कर सरदार फिदा हुसैन खान गोपांग और सरदार फयाज खान गोपांग की काविश से सरदार आशिक खान गोपांग ग्रुप में शमूलियत इख्तियार कर ली है। इसी मौका पर सरदार इकबाल खान गोपांग और दीगर दोस्त भी मौजूद थे। शाहकोट में भी यौम आशूरा इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। शबी जुलजना अलम और ताज़िये का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह सैयद मुराद शाह अलमारूफ अबुल खैर नौलख हजारी से बरामद हो गया। शाहकोट में भी यौम आशूरा इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इमाम बारगाह सैयद मुराद अली शाह अलमारूफ अबुल खैर नौलख हजारी से मरकजी जुलूस बरामद हुआ। जुलूस में हज़ारों अज़ादार शरीक हैं। अज़ादारान हुसैन अलैहिस्सलाम जुलूस में सीना को भी जंजीर जनी और मरसिया खानी कर रहे हैं। यौम आशूरा का जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ मरकजी मिलाद मुस्तफ़ा चौक शाहकोट में पहुँचेगा। वहाँ दरबार मजलिस अज़ा होगी। नारोवाल में 15,000 किलो ठंडे मीठे दूध की सबसे बड़ी सबील नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन और शहदाए करबला की याद में जगह जगह मीठे दूध की सबीलें। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा वॉइस न्यूज़ अली उस्मान से। जी, बड़े सगीर पाक हिंदू की बड़ी गद्दी कायद आज़म के साथी हज़रत पीर जमात अली शाह लिसानी ऑफ अलीपुर सईदा शरीफ के जानशीं पीर सैयद ज़फ़र इकबाल आबदी ने ज़िला भर में दूध की सबसे बड़ी सबील लगाई। ज़फ़रवाल बाईपास पर 15,000 किलो खालस दूध की सबील लगाई गई। खालस दूध में 2 मन पिस्ता, बादाम, काजू, रूह अफ़ज़ा और चीनी का इस्तेमाल किया गया। दूध को पीने के लिए शहर के अलावा करीबी देहातों के मर्द ख़वातीन की बड़ी तादाद की आमद। तहसील शकरगढ़, ज़फ़रवाल, नूरकोट, किंगरा, किला अहमदाबाद, अलीपुर, नारवल समेत दीगर इलाकों में सबील लगाई गई। ठंडे मीठे पिस्ता, बादामों और रूह अफ़ज़ा से तैयार होने वाले खालस दूध को पीने के लिए लोगों की बड़ी तादाद पहुँच रही है। अवाम को सायेदार जगह फराहम करने के लिए कनातों और कुर्सियों का इस्तेमाल किया गया, जहां दूध पीने के लिए आने वाले को बाइज्जत तरीके से दूध पिलाया जा रहा है। जी, मुल्क भर की तरह मियां चन्नू में भी यौम आशूरा अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। यौम आशूरा का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह अबू तालिब से शुरू होता हुआ अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ मियां चन्नू इख्तिताम पजीर होगा। मज़ीद तफसीलात हमें बता रहे हैं मियां चन्नू से हमारे नुमाइंदे मज़हर इसाक चौधरी। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मियां चन्नू में, जहाँ पे जो 10 मुहर्रम अल हराम के हवाले से जो जुलूस है, मरकज़ी जुलूस है, वो निश्तर रोड लाल हवेली पहुँच चुका है, जहाँ जाके मजलिस होगी। मजलिस के बाद जो
यहाँ से अपनी मंजिल की तरफ रवाना होगा, इमाम बारगाह की तरफ जाएगा। यहाँ पे अगर सिक्योरिटी के हवाले से हम बात करें तो फुल प्रूफ जो इंतजाम किए गए हैं, रेस्क्यू का अमला मौजूद है, हॉस्पिटल का अमला यहाँ पे किसी भी ऐसे को हादसे से निपटने के लिए हर तरह से पुलिस की तरफ से जो एहलकार है वो तैनात है, जगह जगह पे नाके लगाए गए हैं और सिक्योरिटी के हवाले से मुकम्मल इंतजाम किए हैं। इस हवाले से हम मज़ीद जानते हैं शफकत शाह साहब से कि वो इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं, तो हमें 10 मुहर्रम अल हराम से जो उम्मत मुसलमा है उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं। शफकत हुसैन नकवी आपसे बात कर रहा है। मैं अंजुमन हुसैनिया का तकरीबन 35-36 साल से जनरल सेक्रेटरी हूँ। हमने इस शहर में बेहतरीन इमाम बारगाह बनाई है और आज़ादारी का सिलसिला जो है उसका आगाज़ इस जगह से हुआ था, मुस्तर रोड से, तकरीबन सन 48 में। उस वक्त मैं छोटा था, मैं दूसरी जमात का तालिब इल्म था और मैं उस जुलूस में शामिल भी था। तो ये है जनाब अली कि मियाँ चन्नू में हमारे DPO साहब, DC साहब और DSP साहब कई बार आ चुके हैं और यहाँ मीटिंग हमारे साथ कर चुके हैं। वो इंतहाई अच्छे लोग हैं, अमन पसंद हैं, हम उनकी आंखें और उनके बाजू हैं। हम भरपूर तरीके से उनसे ताउन कर रहे हैं और उनका आज का इंतज़ाम और अलावा दिनों का इंतज़ाम जो गुजर चुके हैं बेहतरीन है। मैं उसे अप्रिशिएट करता हूँ। माशरे में अमन व अमान कायम करना एनफोर्समेंट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर पुलिस की बुनियादी काम है और हम इंशाल्लाह इसको करेंगे ताकि हम हमारे काम से माशरे में अमन हो। और क्या चाहिए, जब पाकिस्तान हमारा पीसफुल हो, लोग फले फूलें और माशरे में पीस रहे, तो ये सबसे इंशाल्लाह। लास्ट क्वेश्चन